Hello friends, welcome to Manu Law classes. So on the occasion of Pongal, which was yesterday, so today the Hindu, even in offline or online, is not available. So what we have done is that we have taken all the important news from different newspaper like Hindustan Times or Indian Express, and we have covered the news in a PPT format so that you don't miss out on your preparation. So here we are in the PPT form for the daily news analysis for 16th January 2023, and from tomorrow we will be doing the daily news analysis based on the Hindu e-paper as we do every day. So let's start with the news. Today we will be doing important news from world as well as from India, and we will be also doing some awards, obituary of the persons, and we will be doing some economic analysis related to diamond industry in India, which is again going through a rough time because of the global demand which is weakening. So let's start the news. The first news is open doors data. So this open doors data, it was compiled by the US State Department and the Institute of International Education. So now here they are throwing light on the enrollment of Indian students in various courses in the United States universities. So they are comparing the data of past 10 years, that is between 2009-10 and 2020-21. So they have taken this 2 year, which is 10 years apart, and they are comparing the data. So the first data says that the number of Indian students enrolling in mathematics and computer science degree has doubled from 19.8% in 2009-10 to 36.8% in 2020-21. ओके, सो यहाँ पे जो एक कन्वेंशन चलता है बहुत ज़्यादा कि यूएस में लोग जो हैं वो इंडियंस वो इंजीनियरिंग कोर्सेज को करने जाते हैं, दैट दे गो मेजरली फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज. दैट इज स्टिल ट्रू कि आज भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बच्चे जा रहे हैं, बट देर इज़ अ परसेंटेज डिक्लाइन. सो एज यू कैन सी द नंबर 3, that the number of Indian students who are enrolling in engineering courses has decreased from 38.8% in 2009-10 to 29.6% इन 2021-22. तो अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो अब जो इंजीनियरिंग कोर्सेज में जो एनरोलमेंट हो रहा है, इट इज़ लोअर देन द एनरोलमेंट विच इज़ हैपनिंग इन द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिग्री. दैट इज इंपॉर्टेंट. फाइन. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में एनालिसिस लिखा नहीं है, बट इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. That the number of Indian students who are now enrolling in mathematics and computer science degree has doubled as compared, and there is a dwindling एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग कोर्सेज. तो इसके जो कुछ रीजंस जो इसके हो सकते हैं वो ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि द आईटी वेव के बाद अब जो जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है. ओके, एंड देन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग. नाउ दीज आर द मोस्ट साउट आफ्टर कोर्सेज नॉट ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑल्सो इन इंडिया. सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है, इनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो दैट्स वाई इफ यू विल जस्ट सी दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स in mathematics and computer science degree, that has also doubled, okay, within this 10 years. The next is 68 killed as Nepal plane crashes before landing. So this image has been taken from the Telegraph. तो नेपाल में प्लेन क्रैश हुआ है. नाउ वी हैव टू सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर. तो ये जो एयरक्राफ्ट था, इट वाज द ट्विन इंजन ATR-72 एयरक्राफ्ट विच वाज ऑपरेटेड बाय येती एयरलाइंस ऑफ नेपाल. तो एयरलाइन का नाम यहाँ पे क्या है, येती एयरलाइंस. सो इट इज अ ट्विन इंजन ATR-72 एयरक्राफ्ट and it has crashed in a George before landing at the newly opened airport in Pokhara on Sunday. तो क्रैश कहाँ पे हुआ है, पोखरा में. यहाँ पे जो जॉर्ज है, जॉर्ज इज नॉट द नेम ऑफ एनी प्लेस बट इट इज अ जोग्राफिकल फीचर. ओके, it is a geographical feature. So if you will just see the physiography of Nepal, so Nepal is located in Himalaya. Okay, the prominent range in which Himalayan range in which Nepal is located, that is called as Mahabharat range. उसको हम क्या कहते हैं, महाभारत रेंज. सो दिस महाभारत रेंज इज इन नेपाल. जैसे कि हिमालय के बहुत सारे रेंजेस हैं मिडिल हिमालयाज का, दैट इज धौलाधर रेंज, सॉरी धौलाधर रेंज. ठीक है, तो अगर आप धौलाधर रेंज देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है.
Fine. Then you must have heard about Kumaon Himalaya. So Kumaon Himalaya, it is in उत्तराखंड. ठीक, जैसे कि जो अभी आप जोशीमठ का पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं. मीन्स दीज आर रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज और मिडल रेंजेस के डिफरेंट नाम है. और जो आपका महाभारत रेंज है दैट इज इन नेपाल. ठीक, उसके बाद आप देखेंगे जो प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं वो भी नेपाल में हैं. जैसे माउंट एवरेस्ट, इट इज इन नेपाल. तो वहाँ के जो पायलट्स होते हैं उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है दैट दे हैव टू नेगोशिएट सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स एंड ऑफन इन पुअर विजिबिलिटी. दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ नेपाल ऑफर्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ नेपाल. वहाँ का फिजियोग्राफी ऐसा है, वहाँ का जोग्राफी ऐसा है कि वहाँ पे ये एक चैलेंज हमेशा पायलट के सामने होती है. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जॉर्ज क्या होता है, सो जॉर्ज अगर आप देखेंगे सो इट इज़ द डीप वैलीज बिटवीन टू रिवर्स. ये माउंटेन्स हैं, उसके बीच में से रिवर फ्लो होती है. सो दिस डीप वैलीज, ओके, वेरी नैरो एंड डीप वैलीज, दे आर कॉल्ड एज जॉर्ज. उसको हम क्या कहते हैं, जॉर्ज, GEORGE. सो दे आर कॉल्ड एज जॉर्ज. तो जॉर्ज इज जस्ट, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक अ वैली. अगर यही वैली बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है तो उसको हम जॉर्ज कहते हैं. जैसे कि हिमालयाज में जितने भी रिवर्स हैं लाइक गंगा, यमुना, इन द अपर रिचेज ऑफ हिमालय दे मेक अ वेरी डीप जॉर्ज. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड, सो देयर वर 72 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 68 हैव बीन किल्ड एंड 5 इंडियंस वर आल्सो देयर ऑन द बोर्ड. उसमें से जो 4 इंडियंस थे दे वर फ्रॉम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एंड दे हैड गॉन देयर टू विजिट पशुपतिनाथ टेम्पल इन नेपाल. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो नेपाल का ये जो है इट इज़ द 18th एयर क्रैश इन लास्ट 22 ईयर्स विच हैज़ किल्ड 350 पीपल टिल नाउ. तो अगर हम 2000 से अगर देखें तो ये 18वीं बार एयर क्रैश हुआ है नेपाल में और टोटल 22 सालों में इसने किल किया है अबाउट 350 पीपल. द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो हियर वी आर this news is very important in the background of Himalaya again. So ये जो हिमालय रीजन आपका होता है इट इज़, एज वी नो, इट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड. जो आप जोशीमठ में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं. इट इज़ प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट. इट इज़ प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट. देन इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. इट इज़ प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर वेदर इवेंट्स. इट इज़ प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. तो ये हिमालय का जो है ये एडिशनल प्रॉब्लम है. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का कि हम अपनी फोरकास्टिंग को मजबूत कर सकते हैं. फोरकास्टिंग मतलब हम फोरकास्ट कर दें इन इवेंट्स को होने से पहले. तो एक तरीका जो फोरकास्टिंग करने का है वो है डॉपलर रडार. फाइन. So in order to improve the forecasting in Himalayas, we related to these three critical disaster, which is peculiar to the Himalayan ranges. So 4 Doppler weather radar systems was launched in 3 states. These 3 states are Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himalaya. तो अगर आप ये जो places देखेंगे, these are Murara Devi and Jodh in Himachal Pradesh, then Surkanda in Uttarakhand, then Banihal Top in Jammu and Kashmir. Now you people have to write me in comment box the name of the newly appointed chief minister of Himachal Pradesh. Okay. उसके बाद आप देखेंगे कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें. तो बेनिफिट ये मिलेगा कि इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द वेदर फोरकास्टिंग इन हिमालयास. ठीक है. तो जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो हिमालय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. अभी तक हमारे पास ये स्टेशंस थे 25, अब वो बढ़ के कितने हो जाएंगे 37 कुछ सालों में. ठीक है. So it can improve the weather forecasting which are prone to landslide, cloud burst and extreme weather events. Like extreme weather events का मतलब जैसे very high rainfall हो गया, ठीक है, flood हो गया, flash flooding हो गया. तो ऐसे टाइप के जो extreme weather events होते हैं जो higher reaches of हिमालय में बहुत ज़्यादा होता है. ओके. तो इसको हम फोरकास्टिंग इसकी बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपना जो प्रिपेयर्डनेस है डिजास्टर मैनेजमेंट का उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं बहुत जल्दी वहाँ से. फॉर एग्जाम्पल यू कैन एनालाइज दिस इन द बैकड्रॉप ऑफ जोशीमठ. जैसे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जोशीमठ में इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लिया है टू इम्प्रूव द वेदर फोरकास्टिंग इन अपर रीचेस ऑफ हिमालय. द नेक्स्ट इज कमिंग टू द इकोनॉमी. इन सूरत डायमंड्स लूज ग्लिटर आफ्टर रशिया सैंक्शंस, रिस्क ऑफ रिसेशन. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूरत के डायमंड फैक्ट्रीज की विच आर वर्ल्ड फेमस सूरत डायमंड फैक्ट्रीज. ओके.
सूरत डायमंड फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट इन सूरत डायमंड्स दे लूज ग्लिटर आफ्टर रशिया सैंक्शन रिस्क ऑफ रिसेशन। तो सूरत के डायमंड फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसका जो बैकड्रॉप है इट इज रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ओके, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अगर आप सूरत का जो देखें तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि क्या इंडिया बहुत ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा नहीं है। सूरत इज़ नोन फॉर डायमंड पॉलिशिंग, ठीक है। यहाँ पे डायमंड की पॉलिशिंग होती है, उसको कट किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है। इफ यू विल सी दैट अप टू 90% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत, फाइन। पर ये डायमंड कहाँ से आता है, तो ये डायमंड में अगर आप देखेंगे 60% ऑफ द रफ डायमंड इज ऑलमोस्ट कमिंग फ्रॉम रशिया। तो रशिया का एक डायमंड माइनर एंड ट्रेडर है जिसका नाम है अल्रोसा। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सूरत इट गेट्स एन एस्टिमेटेड 60% ऑफ इट्स रफ डायमंड फ्रॉम अल्रोसा विच इज अ रशियन डायमंड माइनर एंड ट्रेडर, फाइन। बट अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते अब रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया है, तो ये रफ डायमंड का आना चैलेंज हो गया है, ठीक। अगर आप देखेंगे कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स दे आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत, इसका मतलब कि सूरत में जो डायमंड कटिंग होती है, जो पॉलिशिंग होती है, दे आर वेरी हाई इन डिमांड, गॉट इट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द फर्स्ट थिंग इज हैपनिंग इज डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, क्योंकि डायमंड वहां से अल्रोसा से आ नहीं पा रहा है इंडिया में, या बहुत कम आ रहा है बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। सो what is happening that enough diamond is not available, that is the first thing. Second, जो डायमंड कट या पॉलिश भी हो रही है क्या उनको खरीदने वाले लोग हैं क्या, तो हम देखेंगे कि नहीं, अब उसको भी चैलेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन रिस्क। सो द टू मेजर फैक्टर्स व्हिच हैज लेड टू दिस प्रॉब्लम इन सूरत डायमंड फैक्ट्री, दैट इट इज ग्लोबल रिसेशन रिस्क एंड वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। तो एक तो सप्लाई भी नहीं आ पा रही है, दूसरा कि रिसेशन रिस्क भी है। So because of that, the Surat is facing challenges. Now that has created an employment problem also. अगर आप सूरत का डायमंड फैक्ट्री देखेंगे, so सूरत it has 4,000 units that source rough diamonds from big firms for cutting and polishing into finished gems. इसमें जो 5 लाख लेबरर्स होते हैं, they are migrant laborers mostly from सौराष्ट्र एंड नॉर्दर्न गुजरात, ठीक। बट अगर हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर्स, ग्लोबल रिसेशन रिस्क एंड वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, सिंस नवंबर 2022 नियरली 5,000 वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ, ठीक है। नियरली 5,000 वर्कर्स दे हैव बीन लेड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। ऑबिचुअरी, मुकर्रम जा अ ट्यूटुलर निजाम ऑफ हैदराबाद डाइज इन टर्की एट एज ऑफ 89। सो ट्यूटुलर का मतलब कि रियल अथॉरिटी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि देन हैदराबाद इट वाज इंटीग्रेटेड विद इंडिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस इंडियन गवर्नमेंट के उस ऑपरेशन का नाम बताइए विच वाज टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट हैदराबाद प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। नाउ कमिंग टू मुकर्रम जा अ ट्यूटुलर निजाम ऑफ हैदराबाद डाइज इन टर्की एट 89। सो ही वाज द 8th निजाम ऑफ हैदराबाद, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, and he was the grandson and successor of last Nizam of Hyderabad, that is Mir Osman Ali Khan. So this is very important that he was the grandson and successor of the last Nizam of Hyderabad, Mir Osman Ali Khan. After that, after the accession of Hyderabad to the Indian Union, the 7th Nizam Mir Osman Ali Khan served as the Raj Pramukh of the state from 26 January 1950 to 31st October 1956. ओके, द नेक्स्ट इज मिस यूएसए क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स। तो ये भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। आल्बोनी गैब्रिएल फ्रॉम टेक्सास इन यूनाइटेड स्टेट, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फिलिपिनो अमेरिकन टू विन मिस यूएसए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि शी इज़ मिस यूएसए ऑल्सो। सो आल्बोनी गैब्रिएल and she was crowned the Miss Universe. She was crowned the Miss Universe. Okay. Now there are some more informations. Okay. चाइना से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, मैं जाते जाते आपको दे देता हूँ। तो चाइना ने फाइनली अपना जो कोविड डेथ है, कोविड डेथ वो WHO को रिपोर्ट कर चुका है, ठीक है। अभी तक डेटाज नहीं आ रहे थे चाइना से, एंड नाउ WHO वांट्स दैट डेटा शुड बी फ्लोइंग। सो यहाँ पे क्या है WHO का कि चाइना ने जो डेटा दिया है उसने कहा है कि दिसंबर में करीब 60,000 पीपल हैव डाइड,
ओके 60,000 पीपल दे हैव डाइड इन चाइना बिकॉज ऑफ कोविड-19। एक जो वेरिएंट है जिसका बहुत ज़्यादा बात हो रहा है ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, दैट इज BF.7, ओके, विच इज क्रिएटिंग हैवॉक अक्रॉस द वर्ल्ड। अब चाइना का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि चाइना ने रिसेंटली अपना जीरो कोविड पॉलिसी की जो रिस्ट्रिक्शंस तो उसको ईज किया था। जैसे उसने ईज किया द केसेस स्टार्टेड सर्जिंग, ठीक, द केसेस दे स्टार्टेड सर्जिंग। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि फिर से वहाँ पे कोविड-19 केसेस हैं, दे आर वेरी हाई नाउ। एक ये न्यूज़ है जो मैंने जिसके बारे में बस हल्का सा डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा न्यूज़ जो है वो रशिया से रिलेटेड है, ठीक। तो एक डेटा आया है न्यूज़पेपर में, दैट इज रशियन ऑयल इंपोर्ट, okay, Russian oil import in India, that is, so it has crossed 1 million barrel per day from first time ever in December। तो दिसंबर में, ठीक है, जो रशियन ऑयल इंपोर्ट था वो 1 मिलियन बैरल पर डे का जो एक लैंडमार्क होता है या जो एक बेंचमार्क होता है उसको इसने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। सो रशियन ऑयल इंपोर्ट, फाइन, इफ यू विल जस्ट सी that India's import of crude oil from Russia, it has increased for the, okay, and for the first time ever Moscow has remained the, means Russia has remained the top supplier for the third month, okay। अगर ऐसे आप देखेंगे तो इराक इज द टॉप सप्लायर, बट करेंटली फ्रॉम लास्ट 3 मंथ रशिया इज द टॉप सप्लायर of crude oil। Russia is the top supplier of crude oil to India from last 3 month। तो रशिया का जो है वो अगर आप देखेंगे तो मार्च 31, 2022 तक रशिया का जो पूरा वो था शेयर, इट वाज जस्ट 0.2% ऑफ द टोटल ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें रशिया का शेयर सिर्फ 0.2% था। But because of this Russia-Ukraine crisis, there have been sanctions and Russia has been eager to find new markets for its crude oil import। जैसा कि आप जानते हैं G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने ऑयल प्राइस कैप भी लगाया हुआ है। ऑयल प्राइस कैप, वो कैप कितना रखा गया है, $60 पर बैरल, ठीक। तो इसके लिए रशिया इज फाइंडिंग न्यू मार्केट। सो नाउ रशिया इज एमर्ज्ड वन ऑफ द टॉप सप्लायर फ्रॉम लास्ट 3 मंथ एंड नाउ इट इज सप्लाइंग 1 मिलियन बैरल पर डे ऑफ ऑयल टू इंडिया फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। नाउ एक और भी न्यूज़ है स्पेन से रिलेटेड। तो स्पेन से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, दैट वर्कर्स दे आर ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स दे आर ऑन स्ट्राइक। सो 2 कंट्रीज दे आर विटनेसिंग स्ट्राइक, वन इज इजराइल एंड द नेक्स्ट इज स्पेन। अब देखिए स्पेन में जो है वो स्ट्राइक क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ द पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पे वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक बट दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम। उसके बाद इसराइल की अगर हम लोग बात करें तो इसराइल में क्या चल रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दैट बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके जो पार्टी का नाम है वो है लिक्विड पार्टी विच हैज सिक्योर्ड 32 सीट्स इन नेसेट। नेसेट क्या होता है, इसराइल के पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, ठीक। So now if you will just see that he has become the prime minister of Israel for the 6th time, okay। So now what is he is doing, that he has stitched an alliance with the ultra conservative parties which want reforms in judicial reform। So he has introduced some judicial reforms। So people say, critics say that these judicial reform they will cripple judicial independence and foster corruption in judiciary in Israel। So people are protesting against the move that is reforming the judiciary by Benjamin Netanyahu government, okay। The next thing is कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए डिस्कस नहीं होता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, और जो प्रेसिडेंट है इसराइल के वो हैं इस्साक हर्ज़ोग। ये नाम भूलिएगा मत, ये बहुत कम न्यूज़पेपर में आता है, दैट हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ Israel। So his name is Isaac Herzog, Isaac Herzog, Isaac Herzog, सॉरी मैं यहाँ पे फिर से नाम लिख दे रहा हूँ, Isaac Herzog, ठीक है। So this is also important।
So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis with the Hindu newspaper. Till then, have a nice time. Take care. Thank you and stay safe.